Chapter 7, Standard 12, Lecture number 26. Last group 7.23. Group 18 elements. You know this one? Group 18 elements. Noble gas elements, inert, zero oxidation states, many names are there. Occurrence यानी कि कहाँ से वो प्राप्त किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके बाद में एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये आज के टॉपिक रहेंगे इस लेक्चर की. तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अब तो आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस की आपने. He z is equal to 2 minus 2, any z is equal to 10, then He cot 2s to 2p6, argon z is equal to 18, any cot 3s to 3p6, krypton z is equal to 36, argon cot 3 10 4s to 4p6, xenon z is equal to 54, krypton cot 40 10 5s to 5p6, radon z is equal to 86, radon z is equal to 86, xenon core 4f14 5d 10 6s to 6p6, and organosol, and that is Og z is equal to 118, which is our radioactive, and that half-life period is very short, 0.7 millisecond, and that's why the whatever the chemical reactions are not known. Okay, so here Og z is equal to 118, radon core 5f14 6d10 7s2 7p6, run 5 6 7 7. Remember, same way here, if you change your electron, then electron configuration is changed, and that is very very important. So here all these electronic configurations you have to learn. One important message from my side is that whatever the outermost cell is there, it is a complete, that is octet rule is completed. So octet means what? 8 electron is completely filled, and that's why we can say that it is an inert gas or noble gas. There is no any chemical reactions, or say no any chemical reactions occur. All are gases and chemically अनरिएक्टिव. आपको याद रखना पड़ेगा ये. इसका रीजन ये आएगा कि वहां से एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव भी नहीं होगा और गेन भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए. अगर वो टॉपिक आपको याद रह गया तो ये बहुत इजी तरीके से आप कर पाओगे. सो ऑल आर गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव. वो रिएक्ट नहीं करेंगे. दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ These they are termed as noble gas. मैंने अभी बताया बहुत ही कम कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नोबल गैस. All are known as noble gas. All these gases except radon and oganesson occur in the atmosphere. यानी कि रेडन और oganesson के सिवा, यानी कि इसके सिवा और इसके बगैर जो सारे हैं वो गैसेस फॉर्म में एटमॉस्फेरिक में पाए जाते हैं, मिलते हैं. Their atmospheric abundance in dry air is above, that is not -1 but above 1% by volume of which argon is, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, major constituent. Which one is a major constituent? Argon, and percentage is 1. So this way may be asked in MCQ. It's a very very important. You have to remember this. Helium and sometimes neon are formed in minerals of radioactive origin. For example, pinchblende, monazite and clavite. आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी रेडियोएक्टिव ओरिजिन की यानी कि जो है वो वहां से मिलते हैं. pinchblende, monazite and clavite. Commercial source of helium is natural gas. Commercial source क्या है helium का? Natural gas है. Xenon and radon are the rarest elements. याद रखिएगा. Which are that? Xenon and radon are the rarest elements of the group 18. Radon is obtained, याद रखिएगा radioactive है. Radon is obtained as a decay product of 2 to 6 radium. यानी कि रेडियम यहाँ पे एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं. सो 2 to 6 88 रेडियम. तो यहाँ पे मिलेगा 2 to 2
रेडॉन 86 और उसके बाद में यहाँ पे अल्फा रेज यानी कि 4He2 यहाँ पे डीके होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा डीके प्रोडक्ट यानी कि ये प्रोडक्ट है, ये हमें मिल रही है। OG has been synthetically produced by collision of यानी कि किसका कोलिजन, कैलिफोर्नियम 24998 प्लस कैल्शियम 4820। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 294 118 ऑक्सीजन प्लस 3 न्यूट्रॉन। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे। जो दो है वो केमिकल जो रिएक्शन है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के हिसाब से है। जो रेडियम होता है वो हीलियम को यानी कि अल्फा या अल्फा रेज है उसको रिलीज करेगा और कैलिफोर्नियम न्यूट्रॉन को यहाँ पे छोड़ देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रही है कोलिजन यानी कि इससे उसको रिएक्ट करने से कैलिफोर्नियम और कैल्शियम को रिएक्ट करने से ऑग्नेसोनियम याद रखिए ये रहा ऑग्नेसोन। सो ऑग्नेसोन आपको मिल रहा है और 3n यानी कि न्यूट्रॉन मिल रहा है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अकरेंस है यहाँ पे फिनिश हो रहा है, लेकिन अभी इसका टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 7.23 ग्रुप 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एक टेबुलर फॉर्म में दी गई है। अब आप इससे वाकिफ हो गए हो, लेकिन अब देख लीजिए एक बार फिर से प्रॉपर्टी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। आप कहेंगे ये कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पे देखिए हेमा ने, एक लड़की है हेमा ने, अरबाज को, अरबाज और करिश्मा को ज़ेनॉन होटल में रेडॉन लाने को कहा। फिर से एक बार याद रखिएगा, टेक्निक है याद रखने की। हेमा ने यानी कोई लड़की है, हेमा ने अरबाज और करिश्मा को ज़ेनॉन होटल में रेडॉन लाने को कहा। इस तरह याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद 8 ऐड कर दो 10 में 8 ऐड कर दो 18 में 18 ऐड कर दो 36 में 18 ऐड कर दो 54 और 54 में 32 ऐड कर दो तो 86। ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस देखिएगा 120 पिकोमीटर में है, 160, 190, 200, 220। अकॉर्डिंग टू we can say that top to bottom atomic radius is increases। आप ये जानते हो, इसको एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है क्योंकि डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं। आयोनेशन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में है 2372, 2080, 1520, 1351, 1170 और 1037। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, वो याद रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे 48 है, उसके बाद में 116 है। ये सेम फ्लोरीन और क्लोरीन इस प्रॉपर्टी में जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर पॉजिटिव है 48, 116, 96, 96, 77, 68। क्योंकि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 48 है, इसमें कम है। यहाँ पे 116 बहुत ही ज्यादा है, जिस तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है उस तरीके से। तो यहाँ पे आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी एट एसटीपी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1.8 into 10⁻⁴ केसेस फॉर्म में है, 9.0 into 10⁻⁴, 1.8 into 10⁻3, 3.7 into 10⁻3, 5.9 into 10⁻3, 9.7 into 10⁻3 इंक्रीज हो रही है, यानी कि डेंसिटी इंक्रीज होगी। मेल्टिंग पॉइंट हीलियम का नहीं है, वो गैसेस फॉर्म में है। नियॉन 24.6, 83.8, 115.9, 161.3 और 202 केल्विन में आएगा, इंक्रीज हो रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट 4.2 हीलियम का, 27.1, 87.2, 119.7, 1650 एंड 211 यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक कंटेंट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे देख लीजिए सीक्वेंस में जाएंगे। 5.24 into 10⁻⁴ मिलियन का अननोन है, आर्गन 1.82 into 10⁻�3, क्रिप्टॉन 0.934, xenon 1.14 into 10⁻⁴, रेडॉन 8.7 into 10⁻�6। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लर्न कर रहे हैं, तो उसमें हमने पहला टॉपिक लिया है आयनेशन एंथैल्पी। तो देख लीजिए यहाँ पे वो सेम ही सेंटेंस आएगा। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीस गैसेस exhibit very high ionization enthalpy. However, it decreases down the group with increase in atomic size. आपको याद रखना पड़ेगा, सभी ग्रुप में ये सेम ही आता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, since noble gases have stable electronic configuration, they have no tendency to accept the and therefore have large positive values. याद रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, एक भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एटॉमिक रेडियस की मैंने बात की है, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगी, आपको याद रखना है। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ ले लेते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक। यहाँ पे आप Ne2Ar2 ऐसा नहीं लिख सकते, आपको लिखना है He, Ne, Ar, Kr, Hc और Rn। यहाँ मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक नहीं है, ट्रायटॉमिक भी नहीं है। कलरलेस, odorless and tasteless, they are colorless, odorless and tasteless, they are sparingly soluble in water, ये तो तीन तो हो ही गए। sparingly soluble in water, sparingly soluble आप जानते हो, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। very low boiling point and melting point, because हमने डिस्कस किया यहाँ पे low boiling point और melting point है, because the only type of interatomic interaction in this element is weak dispersion force। आप स्टैंडर्ड लेवल पढ़ चुके हो, dispersion force। interatomic interaction in this element is weak dispersion force और London forces। याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत ही क्या जाना जाता है यहाँ पे, only types of interatomic interaction in this element is weak, यानी कि बहुत ही क्या होता है, वीक होता है। डिस्पर्जन फोर्स, वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होता लेकिन वीक होता है, उसको लंडन फोर्स भी कहते हैं, आप जानते हो ये बात। उसके बाद में हीलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है 4.2 केल्विन of any known substance, of any known substance। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, an unusual property of diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass और plastics। आपको याद रखना पड़ेगा, diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass और plastics। तो यहाँ पे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे फिनिश हो रही है। अब आगे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, किसका कम है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। किसी भी तरह के क्वेश्चन आए तो आपको एक टेबुलर फॉर्म थोड़ा अलग है तो आप उस पे आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज को लर्न करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 27 में आएगा।